आप देख रहे हैं जनादेश और मैं हूं खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2023 हज यात्रा के लिए सूरत सिविल अस्पताल में 1100 हाजियों का टीकाकरण। दूषित पानी के मुद्दे पर सूरत तंत्र अलर्ट। 25 साल पुरानी लाइन को साफ करने की आपूर्ति के लिए मोड़ दिया गया। सूरत के बागेश्वर धाम में पीठाधीश के दिव्य दरबार के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। अदानी ग्रुप पर अभी नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सेबी को जांच के लिए 14 अगस्त तक का समय चाहिए। कर्नाटक के सीएम होंगे सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पर तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ पहुंची कर्नाटक की आग। टीएस सिंहदेव ने 2.5 साल के लिए सीएम पद संभाला। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हज यात्रा 2023 के लिए टीकाकरण कार्य सूरत सिविल अस्पताल में कुछ समय के लिए किया गया है, जिसे सूरत में और जिले के लगभग 1100 हाजियों का टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें सिविल स्टाफ पूरी सेवा प्रदान कर रहा है। जिसके चलते आज स्वर्गीय यूनुस लतीफ ओरावाला ट्रस्ट द्वारा सभी सिविल कर्मचारियों को उनको काम के लिए सम्मानित किया तथा उनको सराहना भी दी। हज यात्रियों के लिए टीकाकरण अभियान सूरत सिविल अस्पताल में चलाया गया है, जिसमें से सूरत शहर और जिले के 1100 हाजियों को टीकाकरण में लाभ हुआ है। सभी हज का टीकाकरण करने वाले सिविल कर्मचारी और हज समिति के सदस्य, जिन्होंने स्वर्गीय यूनुस सिविल अस्पताल में अपने दस्तावेज प्रमाण एकत्र किए। सिविल अस्पताल और हज कमेटी के लगभग 30 सदस्यों को उनके काम के लिए लतीफ ओरावाला ट्रस्ट द्वारा सम्मानित किया गया और ट्रस्ट के अध्यक्ष जेनेद भाई ओरावाला ने उपस्थित होकर सभी को शुभकामनाएं और सराहना दी। मारू नाम ઝહીર અબ્બાસ હકીમજી, ફિલ્ડ ટ્રેનર ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટી। આજે સિવિલના અંદર રસીકરણનો પ્રોગ્રામ ચાલે છે, વેક્સિનેશનનો। ગુજરાત રાજ્ય હજ કમિટી અને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટના ગાઈડલાઇન મુજબ ટોટલ અમે 4 દિવસનો રસીકરણ અને વેક્સિનેશનનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં તારીખ 15, 16, 17 અને 18 એ રીતે કવર વાઇઝ મુતાબિક ટોટલ सूरत जिल्लाમાંથી 1000 જેટલા હાજી હજ યાત્રાએ જવાના છે। જે રીતના 4 દિવસના અમે આ વેક્સિનેશનનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો છે અને કવર વાઇઝ લોકોને 250 હાજી જેવા એમ કરીને તમામને ડેટ વાઇઝ અમે બોલાવવામાં આવ્યા છે અને અત્યાર સુધી 2 દિવસના અંદર 600 જેટલા હાજીઓને વેક્સિનેશન અમે આપવામાં સ્ટાફ તરફથી આપવામાં આવી છે। કાર્યક્રમના અંદર સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબ, આરએમઓ સાહેબ અને તમામ સ્ટાફ તરફથી અમને પૂરો સપોર્ટ આપ્યો છે, પૂરો સપોર્ટ મળ્યો છે અને સારી રીતે કામગીરી એ લોકો કરી રહ્યા છે। અત્યાર સુધી અમને કોઈ પણ તકલીફ પડી નથી। એ બદલ હું સિવિલ સ્ટાફનો અને પૂરા આરએમઓ સાહેબનો અને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। મારો પરિચય છે કે મારું નામ દેનદેન જાવેદભાઈ સબ્બીરભાઈ કાવીવાલા છે। હું ખિદમત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો પ્રેસિડન્ટ છું અને અમે આજે અહીંયા જે સિવિલ હોસ્પિટલ મજૂરા ગેટમાં ઉપસ્થિત એટલા માટે છે કે હજ 2023માં જે હાજીઓ અહીંયાથી હજ કરવા માટે સાઉદી અરેબિયા જશે એ લોકોનો રસીકરણનો પ્રોગ્રામ ચાલે છે અને આ રસીકરણના પ્રોગ્રામમાં જે અહીંયા સિવિલ હોસ્પિટલનો સ્ટાફ અહીંયા એકત્રિત છે, અહીંયા ઉપસ્થિત છે, 30 જણાનું અહીંયા લેટ યુનુસ લતીફ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટ, જે જુનેદભાઈ ઓરાવાલા ટ્રસ્ટના પ્રેસિડન્ટ મારી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમના દ્વારા હોસલા અફઝાઈ માટે ખરેખર એક યાદગાર પ્રસંગ અહીંયા આજે થયો અને એ બધાનું સન્માન કરવામાં આવ્યું અને એ લોકોએ પણ કીધું કે આજે અમને ઘણું સારું લાગ્યું અને જેટલા પણ હાજી અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ બધા માટે 2 દિવસ સુધી આ હરેક હાજીને ગરમીના મોસમના લીધે આઈસ્ક્રીમનો પણ પ્રોગ્રામ કરવામાં આવ્યો। સાંજ સુધી આઈસ્ક્રીમનો પ્રોગ્રામ પણ ચાલશે અને આરએમઓ સાહેબનું, સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ સાહેબનું પણ અહીંયા સન્માન કરવામાં આવ્યું। આજે ત્રીજો દિવસ છે, એમાં લગભગ 750એ અહીંયા લાભ લીધો અને હજુ આવતીકાલ સુધીમાં ચાલશે, એટલે લગભગ 1150 સુધી અહીંયા રસીકરણનો પ્રોગ્રામ ચાલશે। તેમાં વેટિંગવાળા પણ આવી જશે અને આપની ચેનલના થ્રુ હું એવું પણ કહેવા માગું છું કે જેટલા વેટિંગમાં છે એટલે 1500થી 2200 સુધી જેનો પણ નંબર આવી ગયો છે તે બધા લોકો અહીંયા આવી જાય અને વોટ્સઅપ ગ્રુપના મારો નંબર અને અમારા એફટી લોકોનો નંબર આવે છે એ અમારો કોન્ટેક્ટ કરી અને પોતાનું રસીકરણ અહીંયા કરાવી લે અને કાર્ડ પોતાનો લઈ લે। रिपोर्टर अरविंद राठौर, जनादेश न्यूज सूरत। सूरत के रांधेरी इलाके में दूषित पानी की बाढ़ आते ही जनप्रतिनिधि सक्रिय हो गए हैं। शारदा नगर में लंबे समय से काला दूषित पानी पीने से लोगों को महामारी की आशंका बनी हुई है। आखिरकार आज शारदा नगर में सूरत तंत्र के द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें से स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लोगों को साफ पानी पीने के लिए 25 साल पुरानी लाइन को डाइवर्ट किया गया।
शारदा नगर की जलापूर्ति लाइन कई साल पुरानी थी। चूंकि पानी की लाइन करीब 25 साल पुरानी थी, इसीलिए नमक ज्यादा था। साथ ही लाइन में जंग लगने के कारण कई लीकेज भी देखने को मिल रहे थे, जिसमें से शुद्ध पेयजल अन्य गंदा पानी मिल रहा था। इसीलिए पुरानी पाइप को हटाना पड़ा। स्थानीय पार्षद कृणाल सेलर ने कहा कि शारदा नगर की बस्ती काफी पुरानी है। यहाँ पाइप लाइन बिछाए भी कई साल हो चुके हैं। पुरानी लाइन की खुदाई इस स्तर पर संभव नहीं लगती, क्योंकि कुछ लोगों ने इस लाइन को ऊपर से धकेल दिया है। इसीलिए लोगों को राहत देने के लिए मौजूदा लाइन को अस्थायी रूप से डाइवर्ट कर लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। કૃણાલ સેલર, સુરત મહાનગરપાલિકા કોર્પોરેટર। અત્યારે કઈ જગ્યા પર સ્થળ તપાસ અને કઈ રીતે ફરિયાદ મળેલી ને કઈ જગ્યા પર ઊભા છો, શું કામગીરી ચાલી રહી છે? રાંદેર મોરાભાગર વિસ્તારમાં આવેલ શારદાનગર વસાહતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખરાબ પાણીની એક રાવ ઊભી થઈ હતી, સમસ્યા સર્જાઈ હતી, જેના કારણે અહીં તંત્ર દ્વારા આપણે ચકાસણી કરી હતી। સ્થળ નિરીક્ષણ કરતાં માલુમ પડ્યું છે કે અહીં જે વર્ષો પહેલાં જે લાઈન નાખવામાં પાણી પીવાના પાણીની લાઈન નાખવામાં આવી હતી તેને 20-25 વર્ષ થઈ ગયા છે। 20-25 વર્ષ પહેલાંની જે લાઈન હોય છે તેમાં કેટલાક કારણના કારણે પાણી કોવાઈ આપણે લાઈન કોવાઈના કારણે આ લાઈન ખરાબ થઈ ગઈ હતી, જેના કારણે ગંદુ પાણી લોકોમાં પીવાના પાણીમાં આવતું હતું, જેના કારણે આપણે ટેમ્પરરી સોલ્યુશનમાં આ જે પાણીની લાઈન ડાયવર્ટ કરેલી છે। આ જે જગ્યા છે વસાહત, ત્યાં મશીનરીથી કામ કરવું અશક્ય છે। અને બીજી એવી સમસ્યા આવી છે નજર સામે કે વર્ષો પહેલાં જે લાઈન નાખી હોય તો એમાં જે રહીશો દ્વારા જે ઓટલા અને પોતાના ઘર બહાર લાવ્યા હોય તેના કારણે લાઈન પીવાના પાણી લાઈન દબાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે કામ કરવું અશક્ય હતું। તો હાલના તબક્કે આપણે 2 અલગ અલગ લાઈન ડાયવર્ટ કરી દીધી છે। જ્યાં સુધી મશીનરી પહોંચી શકતી હતી ત્યાં સુધી આપણે નવી લાઈન સારી કરી છે। બીજી જેટલા પણ મશીનરી મશીનરી જ્યાં લાઈન કરી ન શકાય તે જગ્યાને આપણે લાઈન ડાયવર્ટ કરીને એને ચોખ્ખું પાણી આપવાની સુવિધા કરી આપી છે। 3 माह के अंदर नई पाइपलाइन को अस्वीकृत कर नई लाइन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्टर अरविंद राठौर, जनादेश न्यूज, सूरत। अदालत की तरफ से 14 अगस्त तक समय सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग के आरोपों की जांच पूरी करने के लिए दिया गया है। साथ ही 14 अगस्त तक सेबी को रिपोर्ट सौंपने के लिए भी कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुधवार को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को 3 महीने का समय और दिया गया है। अदालत की तरफ से 14 अगस्त तक का समय सेबी को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग के आरोप की जांच पूरी करने के लिए दिया गया है। साथ ही सेबी को 14 अगस्त तक अपडेट रिपोर्ट के लिए भी कहा गया है। सीजेआई अगुवाई पीठ ने कहा कि हम अभी हिडनबर्ग रिपोर्ट के नतीजे से निपट रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट में एमपीएस मापदंडों का पालन न करने पे मुद्दों को असर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में सेबी की तरफ से जांच के लिए समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सेबी की तरफ से दायर किए गए हलफनामे में कहा गया है कि उन पर यह आरोप निराधार है कि सेबी 2016 से अडानी ग्रुप की जांच कर रही है। सेबी ने यह भी बताया कि 2016 के बाद अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की जांच नहीं की गई है। कर्नाटक के सीएम पद के लिए कांग्रेस आला कमान के नाम चुन लिए गए हैं। सिरदार मैया के नाम पर कांग्रेस हाई कमान ने मुहर लगा दी है। वह एक बार फिर कर्नाटक का नेतृत्व करेंगे। गौरतलब यह है कि सिरदार मैया पहले भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। कर्नाटक के सीएम पद के लिए कांग्रेस आला कमान के नाम चुन लिया है। सिरदार मैया के नाम पर कांग्रेस हाई कमान ने मुहर लगा दी है। वह एक बार फिर कर्नाटक के नेतृत्व करेंगे। गौरतलब है कि सिरदार मैया पहले भी कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं। ये सूत्रों के हवाले से सामने आई है कि सिरदार मैया ने राहुल गांधी से जनपद पर मुलाकात की है। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद से सहमत नहीं है और लगातार कांग्रेस के टॉप लीडर से मुलाकात कर रहे हैं। शिव कुमार की असहमति से चलते सिरदार मैया का नाम फाइनल होने के बावजूद ऐलान देर हो रही है। खबर मिली है कि सीएम पद की रेस से आगे चल रहे डीके शिव कुमार को भी कांग्रेस हाईकमान ने ये मैसेज दिया है कि ये सिरदार मैया के कर्नाटक के सीएम होंगे। वहीं डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम पद के लिए सहमत नहीं है। सूत्रों के अनुसार पहले खबर आई थी कि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उन्हें ऊर्जा और सिंचाई विभाग भी दिया जाएगा। वह कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी बने रहेंगे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम पद के लिए शिव कुमार सहमत नहीं है। उन्हें सरकार का हिस्सा बनने की भी संभावना नहीं है। इस बीच कर्नाटक कांग्रेस के पूर्व उप अध्यक्ष जी परमेश्वर ने अपने दावेदारी पेश करते हुए कहा कि अगर पार्टी आला कमान उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देता है तो
इसे संभालने के लिए तैयार है। बता दें कि कांग्रेस विधायक दल की रविवार शाम बेंगलुरु के एक निजी होटल में हुई बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके पार्टी अध्यक्ष खड़गे को विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार दिया है, जो कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी सफलता हासिल की थी और 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया था। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े दावेदारों के नाम सामने आए हैं, एक भूपेश बाघेल और दूसरे टीएस सिंहदेव। कर्नाटक की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चल रही कवायद के बीच एक बार फिर छत्तीसगढ़ के 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चा हवा में तैरने लगी है। राज्य के कटावार मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया है कि उन्हें इस फॉर्मूले को लेकर कोई भी राय जाहिर नहीं की है, न कहीं भी हाँ और न कहीं भी ना। 2018 में हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से बड़ी सफलता हासिल की थी और 1.5 दशक से सत्ता पर काबिज भाजपा को बाहर का सत्ता दिखाया था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के लिए 2 बड़े दावेदारों के नाम सामने आए थे, एक भूपेश बाघेल और दूसरे टीएस सिंहदेव। आखिरकार भूपेश बाघेल को राज्य की कमान सौंपी गई और उस दौरान गलियारों में एक चर्चा खूब थी कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले पर पार्टी हाईकमान ने मंजूरी दी, मगर खुलकर कभी भी किसी नेता इस फॉर्मूले का खुलासा नहीं किया। अब कर्नाटक में कांग्रेस को बहुमत मिले के बाद मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन का दौर जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ में 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चाओं को पंख लग रहे हैं। राज्य में 2.5 साल के मुख्यमंत्री को लेकर लंबे अरसे से चल रही चर्चाओं के मसले पर सिंहदेव सिंह का कहना है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री की चर्चा चली मीडिया में, स्पेक्यूलेशन हुआ जैसा अभी कर्नाटक में हो रहा है, मगर किसी ने तो ये बात नहीं कही। शेयरिंग की बात आई जिस दिन से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की घोषणा हुई, उसी दिन से मीडिया में यह बात चर्चा में आई हुई है। अब ये तो मीडिया ही बताए कि उन्हें क्या स्रोत है। मैंने तो कभी भी नहीं कहा कि 2.5 साल की बात थी और कभी भी ये नहीं कहा कि 2.5 साल की बात नहीं थी। दिल्ली से सिडनी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में झटके खाने लगी, इस वजह से कई यात्री घायल भी हुए। दिल्ली से सिडनी जा रही एयर इंडिया के B787 800 BT NI एयर इंडिया 302 विमान के साथ यह घटना मंगलवार को हुई थी। DGCA के अधिकारियों के अनुसार सिडनी एयरपोर्ट पे पहुंचने पर 7 यात्रियों का उपचार किया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट एक बार फिर चर्चे में है। मंगलवार को दिल्ली से सिडनी जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ान भरी। उड़ान भरने के बाद बीच में हवा थी और अचानक फ्लाइट जोर जोर से हिलने लगी। जोर जोर से हिलने के कारण फ्लाइट में सवार कई यात्रियों को चोट भी लगी। वहीं सभी यात्रियों फ्लाइट में जोर से हिलने से सदमे में आ गए। एयर इंडिया की फ्लाइट जैसे ही सिडनी एयरपोर्ट पे पहुंची तो यात्रियों की जान में जान आई। सिडनी पहुंचते ही चोट खाए यात्रियों को एयरपोर्ट पे इमरजेंसी में इलाज करवाया गया। हालांकि हादसे में किसी भी अस्पताल में एडमिट नहीं करवाया। एयर इंडिया की फ्लाइट में ऐसा हुआ, इसका खुलासा एयरलाइंस द्वारा नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।